So I'll try to finish this lectures by 7:30. Yes, bro. जी you can extend 8 बजे तक. नहीं, हम एक्सटेंड करने के लिए पूरे दिन भर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. पर मुझे लगता है कि मैं भी वॉइस में रहा हूँ, तो इसलिए को वी हैव टू बी स्टिक ऑन द टाइम. मतलब लाइक प्रभु जी कम आते हैं, वेदांत चैतन्य प्रभु, श्रीपाद प्रभु, सो दे कैन एक्सटेंड. क्या आप लोग का टाइम टेबल भी है, बट देखते हैं, लेट अस सी. कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर होता है कि कभी कभी बीच में हमको ये करना ही रहता है. कैसे लगाना है, बस इसमें खोसना रहता है ना. ठीक है, ऐसे ही ना. It's on, right? Hare Krishna. So I welcome all of you to this morning session, particularly on Sunday, right? So we had started like art of tolerance. Right? So this is a topic which I felt that this is necessary for everyone, including me, right? So last class में जब हमने art of tolerance, उसमें बहुत सारे we had discussed many points, right? So हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया था आर्ट ऑफ टॉलरेंस में. फर्स्ट वी हैड सीन दैट we had seen slokas from the Bhagavad Gita 2.14, right? And we had seen that the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from the sense perceptions and one must learn to tolerate them without being disturbed. ये सारी चीजें डिस्कस किया था. Then we had also seen pride cometh before the fall, correct? फिर just I'm recapitulating all those points whatever we had discussed in the last lectures. Fine. So Maharaj says, Rajanath Swami Maharaj says that those person who can tolerate, he is great. He or she is great. So great is one who can tolerate. Yeah. Yeah. Yes. The greatness of a person has to be tested by its own ability to tolerate the provoking situation. Correct? ये हमने देखा था. एंड हमने ये भी देखा था कि actually this sloka, this is something very important to be understood by all human beings actually. Correct? And this one line goes beyond all sectarianism, right? मतलब ये किसी के लिए भी वैलिड है, करेक्ट ना? कोई भी सेक्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इफ यू सी, ये इम्पॉर्टेंट है इन एवरी फील्ड्स ऑफ लाइफ. इफ यू like everybody has the ability to tolerate at some level, correct? But what to tolerate, what not to tolerate, right? In case of devotees particularly, right, actually महान होते, it's very easy to make a show of greatness, right? हम महान हैं उसको दिखाना बहुत आसान है. But however, if you are challenged, correct, or have to face some provoking situations, it's actually the test of your characters. So it's very simple, and the many like greatest scriptures, they give us at a constant time. They tell that there are enemies existing within our heart, right, which are provoked by circumstances, both within and without. And these enemies are like lust, greed, envy, pride, and anger. So a great personality is one who is able to tolerate those urges. So the person who is able to tolerate the provoking situation, it means actually this is one type of testing of his her characters. Right? So if somebody is not able to tolerate, और बहुत तुरंत भड़कने की आदत है छोटी छोटी बातों में, इसका मतलब है कि वी हैव टू वर्क अपॉन हिज हर कैरेक्टर, करेक्ट? ये 6 चीज आ जाता है. मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, इट मीन्स अनर्था, जो इफेक्ट है अनर्था का और ज़्यादा. लाइक वी ऑल आर फुल ऑफ अनर्था,
बट किसी में मैंने बताया था इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड लाइक इन समबडी लाइक इट्स लाइक यू नो द लेवल ऑफ अनर्थ इज लाइक अ रॉक है ना, एंड इन सम रॉक राइट, और किसी दूसरे व्यक्ति में दूसरे अगर देखो तो किसी में कम है थोड़ा वो लेवल पतला वाला जो रॉक होता है उस ये में, बट एवरीबडी हैज टू प्यूरिफाई हिम हरसेल्फ, करेक्ट ना, उस रॉक को हमको पतला कर रहा है जो अनर्थ है इसका, और टू द डिग्री वी आर एंड दैट्स व्हाई यू ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दैट यू नो कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे ये डिवोटी में कुछ हो गया तो प्यूरिफिकेशन हुआ है. I remember when my SR CGD camp was going on in Pandharpur, so that time you know we were taking bath in you know this one हाँ अच्छा वो river छत्रपति अच्छा sorry Chandrabhaga, yes Chandrabhaga. So when we were taking bath तो मेरे पैर में some ants were there and they started biting, अब पूरा पैर red हो गया. तो one of my friend Akash Prabhu he was there, so he told that रंजन प्रभु प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है. तो wow. But that time I was not able to understand so much, and we among the devotees may feel कि ये कौन सी purification है, मतलब हमको पीड़ा हो रहा है. Yes, this is one purification, और ये होता है, it's very scientific, correct. तो purification is very much necessary. What is the difference between our like even if we go through the pain, right? We say this is purifications, but when you go outside, people say कि अरे मुझे कष्ट हो रहा है, and sometimes that's why many of the boys and many of the persons they argue sometimes कि प्रभु जी आप लोग तो भक्ति भी करते हो, बीमार आप भी पड़ते हो, है ना, परेशानी आपको भी होती है, हमको भी होती है, इसमें क्या है, कंसेशन आपको क्या मिल रहा है, आप सुबह में उठते हो, 16 माला करते हो, इतना सब त्यागते हो, ओनियन गैरली, हम तो खाओ पियो मजे करो, फिर भी हमको भी हो रहा है. इसका रीजन है एक्चुअली कॉन्शियसनेस का फर्क है इसमें, राइट. आई गिव देम वन एग्जांपल कि जैसे पेरेंट्स के हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट देयर आर 2 पर्सन्स एंड both of them are suffering from the same disease. Let's take in cancer or some you know dangerous disease, right? So one of them is visiting hospitals, visiting doctors day by day, and he is following the prescriptions, proper prescriptions given by the doctors. But one of the devotees, one of the persons is not just he saying नहीं 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 मुझे hospital जाने की ज़रूरत नहीं है, I will not take prescriptions, I will not go to the doctors, hospitals, मैं छोड़ देता हूँ, अगर मुझे ठीक होना होगा तो हो जाएगा, correct? So now you tell me what is there any difference? है ना difference? एक hospital जा रहा है, one of the person is visiting hospitals regularly and one of the persons is not visiting hospitals and वो बता रहा है कि नहीं नहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. तो what is the like difference? जो हॉस्पिटल जा रहा है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, करेक्ट, एटलीस्ट नहीं भी ठीक होगी तो यू हैव एटलीस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट. तो उसको जो पेन होने की जो डिग्री होगी वो कम होगी. लेकिन जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहा है, जो हॉस्पिटल को नहीं जा रहा है, उसको क्या होगा, बहुत पेन होगा, करेक्ट ना. सिमिलरली when some provoking situation comes or some sufferings comes to the in case of devotees, because we are going to the hospitals, which hospitals? Temple, right? Temple is like a mental hospitals where the minds and the anarthas inside our hearts being removed, correct. बाहर में आप जाओगे किसी को बोलोगे भैया गुस्सा कम करने वाली टैबलेट दो, होगा वैसे कुछ, भैया काम अंदर है उसको काम को कम करने की, रिड्यूस करने की कोई टैबलेट दो, देंगे नहीं देंगे. बट प्रभुपाद है गिवन सच अ वंडरफुल सिस्टम्स फैसिलिटी कि जो हमारे अंदर जो भी अनर्थाज है पूरा कट डाउन रिड्यूस, अगर इफ़ यू आर सिंसियर और पूरा रिड्यूस होकर पूरा जीरो हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन आवर सिंसियरिटी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द like
testing of characters or tolerance. So in course of like when somebody says like we'll talk about lust first, like one of the most formidable impulses, like if you see at our level, right, जो impulse है हमारे अंदर, one needs to tolerate is lust, the major thing, right? This is like 99% of the cases, like everybody has to go through it. Like yeah, somebody has like 90% plus, somebody has 80%, somebody has 20%, but everybody has to struggle through it. But yes, we know the process, we are into the process, right? And those person who does not know what is the process, and when you go outside, people people can't think यार ये lust भी कम करने की कुछ process होती है क्या, गुस्सा कम करने की, they feel that this is inbuilt function, वो होता है ना, वो programming में inbuilt function होता है, already वो बना हुआ रहता है ना, but it's not like that. ये हमारा कर्मा है और हमारी चेतना है कि हमें इसे बना कर रखें गुस्सा. इनफैक्ट देयर इज वन लेक्चर्स गिवन बाय गौरांग प्रभु के, जो क्रोध है, क्रोध कहाँ से उजागर होता है, और पूरा लाइक someday or sometime we will discuss this also. So however, if you see, we are talking about the lust in course of tolerance, right? So actually nowadays it's quite fashionable, and a person is considered mainly to extent he is enslaved and weakened by the lust or engages in lusty activities again and again. Is not that what most movies and television shows are teaching? The greatest heroes are those who gives into their passions or perform tremendously heroic activities in order to fulfill their passionate desires. So this is a sign of much degraded civilization, that people look up to such inferior mentalities. Yeah. So जो बाहर में जो मूवी दिखाया जा रहा है, that's why it's very important. And राधेश्याम प्रभु says you do not see the billboards. जब आप चलो रास्ते पे तो इतना ही देखो जितना कि आपको जरूरत है देखने. Otherwise, we the guys have, we the people have, even among the devotees also, when we are at the beginning of our bhakti, तो हमको बाहर ताक झांक करने की लगता है कि अरे क्या हो रहा है यार, कुछ बेस में भी अगर बहुत दिन तक हो आप और कहीं लगता है कि बाहर की दुनिया को देखें, है ना, but it's very dangerous. That's why we are said, and that's why we are advised, we are advised that whenever you go outside the base or voice, please take like you can take help of one devotee. अकेले नहीं जानी चाहिए, साथ में जानी चाहिए, है ना, कि प्रभु चलिए थोड़ा मेरे साथ में. इट्स लाइक एंटीवायरस, है ना, कि अगर कंप्यूटर में अगर कुछ वायरस आ गया तो उसीलिए तो एंटीवायरस हम लोग रखते हैं ना. हमारा एंटीवायरस हरि नाम है, डिवोटीज एसोसिएशन है, करेक्ट ना, पकड़ कर रखना है. तो बिलबोर्ड्स नहीं देखना है, अदरवाइज हमको ना एकदम पूरी आंखें फाड़ फाड़ बिलबोर्ड्स देखने की आदत है, और इंप्रेशन माइंड पे चला जाता है, और हमको लगता है कि अरे बस मन के अंदर है, कौन देखने जा रहा है. पर देखने के लिए तो बहुत सारे हैं, 10 दिशाएं हैं, यमराज है ना, साक्षी उसको बोलते हैं, तो दे आर विटनेसेस. परमात्मा है हमारे अंदर सिचुएटेड, वो देख रहे हैं. तो एक एक कैलकुलेशन होगा जब भंडारा, जब पूरा, जब हम बॉडी लेफ्ट करेंगे, जब वहाँ जब खुलेगा ना कि क्या क्या हो रहा है, तब वहाँ पे हालत खराब हो जाएगी, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. फिर हम नीचे से ऊपर ऐसे सर नहीं कर पाएंगे, और फिर एबल टू रिकलेक्ट, रिलेट विथ मी. समझ में आ रहा है ना. सो जब हम तो राधेश्याम प्रभु सेज कि समटाइम्स पीपल दे डू नॉट सी, बट बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट्स दे टच इट. मतलब हम आंखों से छू लेते हैं, ऐसा प्रभु जी से इन वन ऑफ द लेक्चर्स. सो इट्स वेरी, कोई ऑब्जेक्ट्स है, somebody is going on the roads, right? I hope what I'm trying to explain here, right? So we do not touch, but we touch with our eyes. but आंखों की शोभा किस चीजों में है? So how we can increase the beauty of our eyes? By seeing the darshan of Radha Govind Ji, Gaur Nitai, Srila Prabhupada. What is the beauty of our lips? Chanting Hare Krishna mantra. Right? What is the beauty of our foot? Beauty of our foot? Dancing.
visiting temples, doing seva. Right? What is the beauty of our hand? Offering. Engaging in offering. Yeah, deity worship or whatever, right? So this is until and unless our all senses are engaged in Krishna consciousness, it will not be purified. And it's very important. Purification is the process. Purification. Otherwise, it's very difficult. नहीं तो हम पूरी लाइफ टाइम तक we keep on करते रहेंगे. But we have to be very serious. और होना ही पड़ेगा. आप सोचो ना कि जब एग्जाम का टाइम आता है ना, हम कितने सीरियस हो जाते हैं. रात रात भर हम दो रात सब ऐसा भी हुआ रहेगा कि we are in the habit of studying for whole night during the exam time. क्यों? कि नहीं तो मार्क्स कम आ जाएगा. कितना डर हुआ रहता है. बट हमको पता है क्या कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है. कल भी आ सकती है. बट हम कहाँ सीरियस हैं. हमको लगता है, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सॉरी, वो डर ही नहीं लगता है कि अरे हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है. हमने इतनी पढ़ाई नहीं किया है, इतना साधना नहीं किया, इतना नहीं किया है ना. हम मर जाएंगे तो क्या होगा फिर. हम तो फेल हो जाएंगे फिर परीक्षा में जो मरने की जो तैयारी है. अब सोचो क्यों ऐसा होता है. क्यों होता है तुषार ब्रो? मैं क्वेश्चन है, मतलब वी आर जस्ट डिस्कसिंग, सो दिस इज नॉट लाइक वन साइडेड. डिड यू गेट ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस? व्हाट आई वांट टू से, जब एग्जाम का समय होता है तो कितना हम रात भर पढ़ाई करते हैं. किए भी हैं, हमने भी पढ़ाई किया, आपने भी किया. अरे कल फेल हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएगा, है ना. बट हमको पता है कि ये भी एक टेस्ट है, ये भी रियल टेस्ट है. बट हम साधना के लिए सीरियस हम नहीं रहते हैं समटाइम्स. मतलब यू ऑल आर सिंसियर, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. We forget. Yes, bro. We forget what We forget. Yeah, this is one of the reason we forget. We do not contemplate actually. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में उस पर सोचते हैं ना, अब जैसे क्या है कि एग्जाम है वो याद रहता है तो डर लगता है ना. When we forget our real purpose, right? That's why Bhakti Charu Swami Maharaj says that life is not an art of living, this is an art of dying. ये मरने की तैयारी है ना. कि हम मरे कैसे, मैंने अपने शरीर को कैसे छोड़े. So to maintain that consciousness at the time of death, that is our real taste. And that is how we are supposed to leave our body at the time of death. And this is more important exams than what we have like modern exams, correct ना. इसमें हमको सोचनी चाहिए क्यों सीरियस नहीं लेते हैं. हमको डर नहीं लगता कि अरे इसके बाद में पता नहीं बिल्ली का जन्म मिल जाए, बंदर का जन्म मिल जाए, कितनी तकलीफ होगी. पेड़ की जन्म मिल जाए, कितना मुश्किल हो गई. सोचो पेड़ पौधे हैं, जस्ट इमेजिन कि दे आर लाइक नेकेड, राइट, स्टैंडिंग एट वन पोजीशंस फॉर 500,000 years. हमको आधा घंटा 1 घंटा हम ऐसे सीधा बैठ नहीं सकते हैं, राइट. So we actually first that we should be very very grateful, correct now. First of all we should be very very grateful that we have got human form of life, correct now, right. So sometimes we forget that कि जो हमारे जो इंसान के जो मानव शरीर जो मिला है ना, वो ऐसे ही है, सबको तो मिल ही रहा है. Because we are not grateful, we have forgotten the purpose of the life. That's why this is happening with us. Sometimes we become very serious, कभी कभी डर जाते हैं हम, और कभी कभी छोड़ देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं. तो what we are supposed to do, कि वैसे भक्तों का संग करना, उस पर कंटेम्पलेट करना, शेयरिंग करना. जो भी चीज़ आपने सीखा है, यू आर सपोज टू शेयर अमॉन्ग योर इनमेट्स, अपने डिवोटीज फ्रेंड्स से कि प्रभु ये हमने सीखा है, कैन आई शेयर पॉइंट, कैन आई शेयर दिस पॉइंट्स, मेक अ नोट्स. उस पर कंटेम्पलेशन जरूरी है. अनटिल एंड अनलेस का यू कंटेम्पलेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. नहीं तो हम भूल जाएंगे, फिर हम ऐसे ही करने के लिए दैट सीरियसनेस वी विल नॉट हैव the same seriousness which at the time of exams we have. So actually
In the Holy Bible also we read that Samson was the strongest man on the earth, but the Delilah was very beautiful, and he lost all of his power, strength, and integrity. Although he could defeat hundreds of men with his bare hands, the beauty of a woman defeated him and he lost everything. तो आपने सुना होगा बहुत बार कि कि बिकॉज किसी व्यक्ति के पास में टॉलरेंस नहीं है, बिकॉज ही हैज नो एबिलिटी टू टॉलरेट, एंड ड्यू टू the lack of tolerance, lack of ability to tolerate some situations, the particular persons has got defeated, right? क्यों? क्योंकि सेंसेस कंट्रोल में नहीं है. सेंसेस को कंट्रोल करना भी तो एक टॉलरेंस है ना. क्यों लस्ट का अर्ज आया है ना, कोई विमेन को देख लिया, और ऐसे बहुत सारे रूलर्स के भी केस में हुआ है. आई एम नॉट श्योर अलेक्जेंडर द ग्रेट, और मैं वो नाम भूल रहा हूँ है ना पर्टिकुलर नेम, बट यू मे चेक है ना, कि वो पूरी युद्ध उन्होंने जीता था, बट लास्ट में बिकॉज ड्यू टू हिज बिकॉज हिज लॉस्ट हिज आई थिंक सीमेंस इन हिज बॉडी और समथिंग रिलेटेड टू वीट, एंड अगली बार क्या होता है, गॉट डिफीटेड. तो ये क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट प्यूरिफाइड, एंड सिंस वी आर नॉट प्यूरिफाइड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट, राइट? बट वो धीरे धीरे होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे. दिस इज आवर प्रैक्टिस, दिस इज आवर सिंसियर प्रैक्टिस, देन विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग. This is as good as, like, this is same as, a person is going to the gym regularly, and he's trying to get the क्या सिक्स पैक बोलते हैं उसको, सिक्स पैक्स है ना. वो क्या करता है, डेली प्रैक्टिस मसल्स, राइट? वो एक दिन में तो होता नहीं है ना, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट, राइट? कंसिस्टेंट. वो सेम चीज यहाँ भी होती है. साधना है ना, हम लोग इतने पतले हैं ना, पतले इन द सेंस बहुत वीक है साधना में. वो साधना धीरे 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 धीरे, जैसे प्रभु जी गिव्स द एग्जांपल ऑफ, जैसे वो लेंस होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, तो उसे एक पॉइंट पे आप रखोगे तो कागज जल जाता है, राइट? हम लोग बचपन में ट्राई भी किया करते और होता भी था उससे. सिमिलरली व्हेन यू आर फोकस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, और साधना जो है बहुत अच्छा जा रहा है, तो उस चीज़ों में जो हमारे अंदर अनर्थाज है पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो जल कर राख हो जाएगा. दिस इज द पावर ऑफ हरिनाम और कृष्ण कॉन्शियसनेस. और आपको फील भी कभी कभी भगवान ना समटाइम्स ही गिव्स द टेस्ट. हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन आप बहुत सिंसियर हो, बहुत जपा, बहुत कभी कभी जपा में बहुत टेस्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वाह आई फेल्ट वेरी नाइस, काश ऐसे ही जपा हर दिन होता कि नहीं, है ना आपको. तो वो क्या है, वो टेस्ट है, भगवान टेस्ट दे रहे हैं, और वो टेस्ट की वजह से फिर हमारी प्यूरिफिकेशन होती है. नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम जस्ट वी डू द चैंटिंग फॉर द सेक ऑफ चैंटिंग, करने के लिए करते हैं. So now coming to the anger part, right? So when the lust is unfulfilled, right? Everybody knows when the lust is unfulfilled, it brings about a sensation of anger, correct? And what do people do in that, like, frenzied state of that anger? When they are upset, they say things and do things that sometimes they regret for the rest of their lives. And anger is very difficult to tolerate. तो थोड़ी देर के लिए इसीलिए बताया जाता है कि जब वो उस परिस्थिति में होते हैं, गुस्से की परिस्थिति में रहते हैं, तो बहुत अपसेट रहते हैं और वैसे चीजें कर डालते हैं जो करना नहीं चाहिए उनको, और पूरी जिंदगी भर के लिए वो पश्चाताप करते हैं. So this is very like there is one very inspiring story in Vedic scriptures. आपने सुना भी होगा. There was a king named रांतिदेव. सुना है आप लोगों ने? Okay. एक राजा थे and whose name was रांतिदेव, who fasted for a long duration of time for the welfare of the world. है ना, दुनिया की भलाई के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत दिनों तक वो उपवास पे रहे.
is the fast breaking time today? 8 o'clock, right? 6:44. 6:44. No, fast breaking time. कितीचं बघा ना. I will किती go पर्यंत आहे on बघ? I think Search 8 o'clock around, अच्छा 8 o'clock आहे. perhaps. 8:15. Okay. So there was a king named Rantidev who fasted for a long duration of time for the welfare of the world. And when he was on the verge of death, right? जब वो मृत्यु के 8 9. 8 9 ना, हाँ, just मैं क्योंकि वो important है. Because breaking fast is more important than the fastings, correct? So there was a king named Rantidev who fasted for a long duration of time for the welfare of the world, right? And when he was on the verge of death, he was brought a large quantity of sanctified food to break his fast. Okay, let me tell this story in Hindi. It will be more interesting actually. तो एक रांतिदेव नाम के एक राजा थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत दिनों तक वो उपवास रहे. कुछ चीज़ें हिंदी में ही बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली आई फील. सो जब वो मृत्यु के कगार पे थे, बहुत दिन तक कोई व्यक्ति फास्ट पे है, उपवास पे है, तो ऑब्वियसली मृत्यु के डेथ बेड पे आ गए थे. और जब वो मृत्यु के कगार पे थे और फास्ट करने वाले थे, तो उनके पास बहुत सारा वैरायटी का सैंक्टिफाइड फूड लाया गया उनके फास्ट ब्रेक करने के लिए ना. जैसे ही उन्होंने जैसे ही अपना वो फास्ट ब्रेक करने ही वाले थे, एक उनके पास पुजारी प्रकट हो गए और बोलते हैं, ओ रांतिदेव, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए. वो अब राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई इतना दिन तक फास्टिंग रहे, तो पुजारी को उन्होंने दे दिया भोजन. उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया. जैसे ही उन्होंने प्रीस्ट को मतलब पुजारी को खिला दिया तो सेटिस्फाई हो गए. जैसे ही फिर वो बैठे खाने के लिए, एक किसान आ गया और उनके सामने प्रकट हो गया कि मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दिया जाए. तो रांतिदेव ने उनको किसान को भोजन दे दिया. जैसे ही वो फिर खाने के लिए बैठते हैं, एक व्यक्ति आ गया अपने साथ बहुत सारे कुत्तों को लेकर और बोलने लगा, रांतिदेव, मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, क्या उनको पानी और भोजन मिलेगा क्या? तो रांतिदेव ने, जो राजा थे, उन्होंने कुत्तों को खिला दिया. दिस इज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. लिसन, दिस इज द टेस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड द टॉलरेंस, एंड दिस इज द प्रोवोकिंग सिचुएशन एक्चुअली. एंड हमको एक टाइम कभी समटाइम्स प्रसाद कभी समटाइम मतलब कभी ऐसा होता है कि फिनिश हो गया, ये हो गया, तो हम समटाइम हमको वो अंदर से थोड़ा बुरा लगता है ना. दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोवोकिंग सिचुएशन. If the person, somebody is there who is fasting for a long time, right, and when he is supposed to break his fast, उसके सामने पहले बार पुजारी आते हैं, फिर किसान आते हैं, फिर एक व्यक्ति कुत्तों को लेकर आता है और उनको खिला देता है, राइट. एंड बाद में बस उनके पास क्या बचता है? पानी बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो राजा के पास. तो जैसे ही if he didn't drink that water immediately, he would die. अगर वो पानी नहीं पीते तो मर जाते. और ये जीवन और मृत्यु की बात थी. बट जैसे ही वो पानी, जैसे ही वो जल पीने ही वाले थे कि एक लो क्लास पर्सन, निम्न जाति का, निम्न श्रेणी का एक व्यक्ति आता है, उनके सामने प्रकट हो जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगी? तो अब आप बताइए, इसको प्रोवोकिंग सिचुएशन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक पानी भी उनके पास नहीं रहता है. तो रांतिदेव ने, अब कोई ऑप्शंस नहीं था, अपना हाथ उन्होंने, ही फोल्डेड हिज पाम्स एंड प्रेड दैट माय डियर लॉर्ड, आई डू नॉट प्रे टू यू फॉर द मिस्टिक पावर और मिस्टिक परफेक्शंस. आई डू नॉट प्रे टू यू फॉर salvation from the suffering or even liberations. I only have one prayer. Let me live among all living beings and let me suffer so that other living beings will not have to suffer. उन्होंने एक ही चीज़ किया, प्रार्थना की अपने दोनों हाथों को जोड़कर कि हे भगवान, मुझे मिस्टिक परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं किया. ना ही मुझे कोई सफरिंग, पीड़ा से मुक्ति चाहिए, ना ही कोई मुक्ति चाहिए. मुझे एक ही बस आपसे प्रार्थना है कि मुझे सभी मतलब लिविंग बींग्स में रहने दीजिए और मुझे उनके साथ सफ़र करने दीजिए.
क्योंकि फास्टिंग तो अपनी प्रजा के लिए किया था उन्होंने और उनकी भलाई के लिए किया था, तो उनका कोई उसमें सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं था, राइट, ये नो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। तो वो बता रहे हैं कि बस मुझे अब इस व्यक्ति को मैं पानी भी दे देता हूँ, आई विल फॉरएवर बी फ्रीड फ्रॉम थर्स्ट, हंगर, मोरोजनेस, लैमेंटेशन एंड ऑल द सफरिंग्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। उनके आंखों में आंसू आ जाता है रामती देव के, और ये प्रार्थना करके वो पानी, मैं ये गुजबम्स आ जाते हैं ये सिचुएशन को मैंने रिकॉल और बार बार मैं ये चीज़ को जब मैं याद करता हूँ, राइट। सो विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन हिज आईज, राइट, रामती देव गिव द वाटर टू दैट मैन एंड दैट इज ग्रेटनेस, दैट इज टॉलरेंस। अब इसके बाद क्या होता है, पानी देने के बाद क्या होता है? सो ऑल ऑफ अ सडन द प्रीस्ट एंड ऑल ऑफ दोज पर्सनालिटीज who had earlier come for the food and the water with, है ना, who had come to beg from Ranti Dev appeared before you. कौन कौन था उसमें? पहला पुजारी थे, फिर फार्मर्स थे, पीजेंट्स, फिर एक व्यक्ति था जो कुत्तों के साथ में था, फिर जो एक और हाँ लो क्लास मैन का पानी के लिए जो थर्स्टी था वो आ जाते हैं अचानक, एंड दे ऑल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेलेस्टियल बीइंग्स। और वो सभी भगवान के एक्चुअली क्या रहते हैं? मैसेंजर्स रहते हैं, वो मतलब वो लोग से आए हुए रहते हैं, है ना। और दे गिव हिम नाइस फूड, वो उल्टा वो फिर रामती देव को भोजन देते हैं, बोलते हैं वी अपीयर्ड बिफोर यू इन दैट वे बिकॉज वी वांटेड टू शो द वर्ल्ड व्हाट इज ग्रेट पर्सन, हु इज अ ग्रेट पर्सन, एंड दैट इज टॉलरेंस। वन ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय one's ability to tolerate the provoking situation. In fact, forgiveness and tolerance are inseparable. मतलब क्या कि अगर कोई बोलता है कि ठीक है उसको मैंने माफ कर दिया और उसके पास सहने की क्षमता नहीं है, ये हो नहीं सकता, बिकॉज उसके पास सहने की क्षमता है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू फॉरगिव, राइट। बट वो चीज़ को हमको लेकर ढोना नहीं है, नहीं तो जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होता है, अरे मैंने तो उसको माफ किया है, अरे नहीं, forgive and forget. So forgiveness and tolerance are inseparable. They are two sides of a coin. Head है तो tail है, वैसे ही forgiveness and tolerance, they are inseparable. We can't separate. Right? So the power to forgive others for offenses and injustice is the actual sign of real tolerance and the quality of a great person. Correct. Even in fact Jesus Christ also, he forgave the world who crucified him. सोचो आप, जिन्होंने उनको क्रूसीफाइड किया उनको माफ कर दिया, और उनका प्रेयर्स यही था कि ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू। मतलब जिन्होंने उनको क्या बोलते हैं, उस क्रूसीफाइड सूली पे जो उनको चढ़ाया जीसस क्राइस्ट को, उनके लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं, ये भगवान उनको माफ कर दो, उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया। सोचो। So we have 4 to 5 minutes more according to the right. We discuss about the lust, anger. हमने लस्ट का भी एग्जाम्पल देखा, हमने ये भी लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि कि बहुत सारे यूएस के प्रेसिडेंट्स, एक यूएस के प्रेसिडेंट्स भी क्रिटिसिज्म में थे क्योंकि he was not able to tolerate his lust, and he was the commander in chief of the army, navy and air force, but he was not the commander in chief of his senses and the mind, right? So somebody may be the commander in chief or controller of a country or a state or a district, right? But if he is not controller of his mind and the senses, क्या फायदा है? So बहुत सारी चीजें होती हैं कि marriage are spoiled and nations are put up in ruination because people are not able to tolerate the provoking of lust. इसकी वजह से झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं। तो हमने लस्ट का एग्जाम्पल भी देखा, एंगर का रामती देव का एग्जाम्पल देखा। अब चलते हैं ग्रीड के ऊपर। सो ग्रीड में क्या होता है, जस्ट एज लाइक अब हमने देखा कि व्हेन द लस्ट इज फुलफिल्ड, राइट, तो अगर लस्ट फुलफिल हो गया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और चाहिए।
और चाहिए, ग्रीड बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। और नहीं फुलफिल हुआ तो फिर क्या होता है, Anger. एंगर आ जाता है, ठीक है। तो अगर लस्ट फुलफिल हो गया, जस्ट एज फ्रॉम अनफुलफिल लस्ट एंगर अराइजेज, राइट। सिमिलरली व्हेन लस्ट इज सेटिस्फाइड, इट क्रिएट्स ग्रीड फॉर मोर एंड मोर, और चाहिए और चाहिए। सो actually Maharaj is saying here that in those times, I'll just read as it is. Recently in Delhi, I was asked to give a lectures in a management institute on ethics in business. People are very disturbed and confused due to unethical behavior, even from those in very high positions. It is difficult to tolerate temptations. Maharaj बोल रहे हैं, it is very difficult to be honest. It has become just a part of life to take bribes. However, taking a bribe is unethical. You are selling your soul for a little money and degrading the integrity of the whole nations. That is what it is about. When this becomes something normal, we can understand how full-fledged degradation is affecting our world. So greed के लिए महाराज is talking about the here bribes, corruptions, है ना, कि इतना एक sorry. So Maharaj is talking about here greed, right? Many people are there, who are in the habit of taking bribes. थोड़े पैसे के लिए अपने ईमान को खोना, अपनी इंटीग्रिटी को खोना, करेक्ट? Correct. So how to tolerate greed, right? We saw anger, lust. So how to tolerate greed? Maharaj says that in a scandal, right? Many people here Maharaj is giving example of Enron, a scandal of Enron. Those people who were so wealthy, but to get little money, they were cheating the same people who gave their whole life to make them what they were. What did that do the morale of the nations? If the WorldCom, Enron and big politicians are causing pain to the others just for a little more money or for a lot more money, that is greed. When provoked by the greed, people rob, steal, cheat, lie and even kill. Correct? Our college must teach students how to follow proper ethics and morality. Otherwise, afterwards, although they may be big and rich, they will simply cause damage to the planets. We can teach theoretically about morals and ethics principles, but unless we have convictions and inner realizations, we are very prone to be overcome by temptation for this. It's very important, correct? पहले आई डोंट नो अभी ये चलता है कि नहीं, पहले मोरल साइंस की बुक चलती थी, मोरल वैल्यू, है ना, उसको नैतिक शिक्षा बोला करते थे। इवन वी हैव स्टडीड मोरल एजुकेशंस की बुक रहती थी बचपन में कि व्हेन यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड टच योर फीट टू योर पेरेंट्स, माता पिता का पैर छूना है, सबको नमस्कार करना है ना। तो दे वर एटिकेट्स। और इवन आई डोंट नो अभी भी बहुत सारे स्कूलों में व्हेन विल गो टू द नॉर्थ इंडिया, यूपी और बिहार की तरफ, तो वहाँ पे संक्षिप्त रामायण चलता था। लाइक हम लोग को लाइक सीबीएसई बोर्ड से, बट दोज आर इन स्टेट बोर्ड, माय सिस्टर्स वर इन स्टेट बोर्ड, तो उनको संक्षिप्त रामायण की बुक रहती थी और उसमें पूरी रामायण की स्टोरी दी गई थी। इट्स सो नाइस, राइट? एटलीस्ट दे विल नो क्या है रामायण में। अदरवाइज नाउ इट इज इन टुडे जनरेशंस they do not know about who was Ram and Sita and which is the real wealth of our country, correct? So how to tolerate greed? We must understand that what real wealth is, correct? Real wealth is our integrity, है ना। integrity हमारी, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, उसी को करना है, that is integrity, है ना। we what is integrity? Whatever I am speaking, I am going through it, right? That is integrity, right? So जो मैंने प्रण लिया है, डिटरमिन किया है कि अच्छा ये चीज़ हमको फॉलो करनी है, वो इंटीग्रिटी है। रियल वेल्थ इज इन लाइक हाउ द लॉर्ड विद इन आवर हार्ट इज सीइंग अस। ये चीज़ों को समझना कि भगवान हमारे हृदय को किस तरीके से देख रहे हैं, है ना।
द ग्रेटनेस्ट ऑफ ऑल वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ लव. प्रेम की धन है, सबसे बड़ा धन जो है प्रेम का धन है. मनी कांट बाय लव, फेम एंड प्रेस्टीज, राइट? कांट बाय लव. लव, आपने कल का लेक्चर सुना होगा महाराज का, है ना? वन पर्सन आस्क द क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, है ना? सुना कि एज हेडिंग 30 और 40,000 people employ, he had like उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, and still he is very upset and he asked that हम मानसिक संतुलन कैसे मिलेगी, मतलब मन को शांत कैसे रहे. This is the reality of life, many people. And we need to understand. And किसी के पास in case of the devotees, he may be earning 10,000 per month, लेकिन वो देखो मन पे कितना वो शांति दिखती है, झलकती है. So what is the ultimate love? So basically, ultimate love is the love between the soul and the supreme soul or the God, correct? Right. So this is the love between the soul and the super soul or the God, correct? Just take dana for you. Thank you. So this was about the greed. I think time is up, right? So, yeah. So we'll stop here, and in the next sessions we'll be discussing. We have discussed about the, like in the last session we had discussed what actually the meaning of tolerance is. We had gone through some slokas. We had say many examples, and now what we are doing. So we discussed about the lust, anger, greed, and in the next sessions what I will be doing, we will be discussing about the envy and pride. Okay. After that, some choices and something more, right? And in the next lecture, probably we will be able to finish this topic, art of tolerance. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions you have? कोई questions होगा तो आप पूछ सकते हैं. Can we take one question, bro? Yes, Okay. Yes. तो कभी कभार क्या होता है, मेरा डेली का जो शेड्यूल रहता है ना वो फिक्स रहता है, तो वो फॉलो नहीं होना तो मुझे मतलब अंदर से Frustrate. करेक्ट. डेली का शेड्यूल, तो प्रो जी का क्वेश्चन है कि इनका डेली का जो शेड्यूल है वो फॉलो नहीं हो पाता है, तो मतलब किसी को बुरा लगेगा, बट वो क्यों फॉलो नहीं हो पाता? ईश्वर को. कभी कभार कॉलेज में लेट हो गई एक्स्ट्रा लेक्चर्स की वजह से, कभी कॉलेज पे उसका हाँ, मीटिंग में तो अभी ना क्या है ना कि वो देखो बिल्कुल सही है कि वो एवरीबडी है गोज थ्रू इट, मतलब वो हर किसी के साथ होता है. तो पहला तो जो बेसिक्स प्लान है, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम वो आप करो, वो तो आप करते ही हो, है ना? और मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में ये क्या फॉलो, जैसे एक चीज़ है तो एडजस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा. जैसे आप अगर प्लान है आपके पास, तो डेट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलेज में जो लेक्चर्स भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहते हैं तो अचानक रखते हैं और रैंडम रखते हैं या प्लान रहता है उसका कुछ? कभी कभार 10-20 मिनट एक्सटेंड कर देते हैं. तो क्लब का मीटिंग रहता है ना कॉलेज के ऊपर, तो कभी कभार अच्छा, क्लब मतलब ये अपना नहीं, कॉलेज के अलग अलग क्लब है ना, हम्म. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप से, तो उनका मीटिंग रहता है कभी कभी. 10 मिनट फास्ट ब्रेक कर लेता हूँ, मुंह में डाल लेता और समटाइम मेरा कोडिंग का भी क्लास होता है, तो वो भी एक्सटेंड हो जाता है. तो वो तो रहेगा प्रभु, कोडिंग भी रहेगा, कॉलेज भी रहेगा, कुछ दिन बाद जॉब भी लग जाएगा, है ना? तो दैट इज गोइंग टू बी एज इट इज. बट हमको क्या है ना कि जो मेन प्रिंसिपल्स है ना, जो प्रिंसिपल्स है उससे हमको एकदम पकड़ कर रखना है. क्या है? हमारा 16 माला होनी चाहिए, है ना? मॉर्निंग प्रोग्राम होनी चाहिए, है ना? कोशिश करो कि यू शुड ट्राई टू फिनिश योर 16 आवर्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. वो पावर है, वो एनर्जी है, दैट इज द वैक्सीनेशन. प्रभुपाद यूज्ड टू से कि मॉर्निंग प्रोग्राम इज द वैक्सीनेशन. कोरोना के टाइम सबने वैक्सीन लिया ना, तो वो टीकाकरण, वो बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. माया से हम तो माया से लड़ नहीं सकते, हमको लड़ना नहीं है माया से. वी डोंट हैव टू फाइट विद द माया, वी हैव टू रन अवे फ्रॉम द माया. हमारी क्या क्षमता है माया से लड़ने? हमको भागना है, तो साधना से हमको एंटीवायरस चारों तरफ लगा के कोटिंग करके रखना है. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि पहले साधना पूरा कर लो. अब फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वही टॉलरेंस याद करो, सारे फिलॉसफी को आप याद करो उसमें.
श्लोका रिसाइट करोगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति कितना भक्ति में आगे है, उसकी टेस्टिंग, उसकी मन की शांति, कितना वो शांत है, उससे होता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में बहुत भड़क रहा है, थाना बोल रहा है, और ये तो फिर मतलब इसका मतलब डिस्टर्ब है, तो थोड़ा पीसफुल एकदम। और किसी डिवोटी को देख कर लगता होगा ना, अरे कितनी पीसफुल है ना, बहुत कितनी शांत। उसी में ही ब्रह्मचारी जो सीनियर मतलब सारे कितने पीसफुल, और वो चेहरों पे मासूमियत, इनोसेंस दिखता है। तो सिमिलरली वो तो रहेगा, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट एडजस्ट हो जाता है। अब आप करना है। और फिर अब जैसे किस चीज़ में एग्जैक्टली मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ में होता है, वही कि मतलब जो टास्क रहते हैं ना वो कंप्लीट नहीं हो पाते कभी कभी, थोड़ा बहुत रह जाता है। अच्छा तो कोई नहीं, उसके लिए तो अब थोड़ा उसको और आप देखो कि थोड़ा क्या माइन्यूट तरीके से थोड़ा देखो कि और इसको क्यों हो रहा है ऐसा। तो 10 मिनट अगर उधर कम हो रहा है, मतलब 10 मिनट ज़्यादा हो गए, तो बाद में आप इधर 10 मिनट दे दो और ज़्यादा। वी हैव 24 आवर्स, और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 24 घंटे कभी पूरा नहीं हो सकता। आप लिखो क्या क्या करते हो आप। 2 घंटा चैंटिंग, 2 आवर्स चैंटिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम्स एंड ऑल, इतने आवर्स कॉलेज, इतना घंटा ये क्लासेस, फिर भी मेरे केस में कुछ न कुछ आधा घंटा 1 घंटा बच ही जाता है, 10 मिनट बच ही जाता है। फिर मैं सोचता अरे कहाँ बच जा रहा है। ओ तो समटाइम्स टाइम गोज अवे, वी डू नॉट रियलाइज कि यहाँ पे टाइम जा रहा है। तो ये इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण स्मरण प्रभु वन वेरी सीनियर डिवोटीज, मतलब ही जन IIT के बच्चों को, IIT दिल्ली में शायद प्रोफेशन है, पहले थे पता नहीं, बट वो मैंने सुना, उनको पर्सनली मैंने सुना है। तो बता मतलब वो मैं मतलब दे उनके उनके भी उनके अपने लाइक ही हैड मेनी डिवोटीज राइट। और वो ही यूज्ड टू से कि मतलब बच्चे वहाँ पे 2:30 बजे उठते थे। उनके जो वहाँ पे जो बेस जैसा अपना है वैसे ही वहाँ पे भी दे लाइक ही हैज बेसिस। सो द स्टूडेंट हिज स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग, जस्ट गुरुकुल टाइम, और 2:30 टेकिंग प्रसाद एंड ऑल्सो। अब और बेहतर ये है कि यू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग में। जो चीज़ सुबह में अगर फिनिश हो जाता है ना, अगर चैंटिंग बच गया तो पूरा दिन जाएगा आपका, और सुबह में हो गया तो बहुत आप रियलाइज करो जिस दिन जितना अच्छा साधना उतना अच्छा आपका काम होगा बाहर का स्टडी। अब सुबह में जपा कर लो सुबह में, बट यू हैव टू स्टार्ट इन द ब्रह्मा मुहूर्त, तो फिनिश हो जाएगा। तो एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।